चलो लेट अस स्टार्ट। आवाज क्लियर है मेरी एकदम? यस सर। यस सर। यस सर। एंड मन साहब ने वत्सल के लिए मैसेज डाला है कि प्लीज डोंट शो योर वीडियो टू अस, सो वीडियोस अपने बंद रखें प्लीज एंड म्यूट योरसेल्फ। जब बोलना हो देन यू कैन अनम्यूट। सो let us move on. We should not waste much time because we have lots to do. Yesterday we had studied Heron's formula. Heron's formula. And we had completed the whole chapter. Chapter 12 completed. And then worksheet आ गई थी आपके पास R.D. शर्मा में से. And I think you all might have gone through the worksheet and you all might have done also. कितनों ने किया है बेटा? Sir, I have done. Very good बेटा. और किसी ने नहीं किया है? Yes sir, done. बस one? Okay, Done, 2, sir. 3. Sure, half done. Okay, half done. Good. Attempt लिया, that is also very good. 4. बस. Okay. Not an issue. Very good. Done, sir, done. See, let me remind you and let me tell you one more thing. Very soon you will be having your submission. Very soon you will be getting the message. So इतना काम इकट्ठा मत कर लो कि तुम कंप्लीट ना कर पाओ सबमिशन से पहले, because classes will be going on regular. You will be having your homeworks regular. तो होमवर्क बढ़ता जाएगा और फिर पता चलेगा that you haven't completed your fair notebooks. So do your work every day. Your homework should be completed every day so that a stack of homework is not mentioned there and you will have to be rushing in the last hours for submission. तो थोड़ा थोड़ा काम रोज का करते जाओ, that would be much better. So those who have not done, please do it. Complete your fair notebooks. Today we will be moving on to a new chapter, and the chapter is coordinate geometry. Chapter number 3. Coordinate geometry. So if anybody wants to come to my home, किसी को अगर मेरे घर आना है मुझसे मिलने के लिए, this is my address. You can come and meet me. Yes sir, I will. This is my address. शाम को 5 बजे you all are invited. घर तक पहुंच जाओगे ना? हाँ सर. Yes sir. कितने में पहुंच जाओगे ना? सब कोई आ जाओगे ना? हाँ सर, मैं तो आ जाऊंगा सर. पूरा एड्रेस तुमने देखा है घर पर? अच्छा, पूरा एड्रेस चाहिए तुमको? अरे यार, पूरा एड्रेस चाहिए तुमको? चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं. अब पहुंच जाओगे मेरे घर तक? सर और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए. और कौन सा फ्लेवर? और थोड़ा सा चाहिए? अरे यार, और थोड़ा चाहिए तुमको? चलो चलो. हाँ सर, अब आप पहुंच पहुंच जाओगे? सर वन है. पक्का पहुंच जाओगे? हाँ सर, और कुछ चाहिए? नहीं सर, अरे विकल्प चलो एग्जैक्ट देते हैं, SMP टावर. और थोड़ा चाहिए तो इतना खाली लिख देते हैं. चलो लिख दिया. अब पहुंच जाओगे? अब पहुंच जाएंगे. तो एग्जैक्टली चलो अब यहाँ इतने एड्रेस से तो मेरे घर तक आ जाओगे. What do you mean by this? क्या समझ में आया एड्रेस लिखने का? मैं किसी को अपने घर बुला नहीं रहा हूँ. This was just an example. But if you want, you can come anytime. मजाक कर रहा हूँ. But what do you understand? क्यों इस तरह से स्टार्ट किया कि मैंने अपने घर का एड्रेस आप लोगों को धीरे धीरे दिया? You wanted more and more and more. What we were actually doing? Exactly कहाँ रहते? More perfectly placed. हम exactly कहाँ? More perfectly placed कर रहे हैं. Very good. That means we are locating a particular place.
we are locating a particular place. So location, locating exact positions is the work of coordinate geometry in day to day life. हम लोग जो डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये जो मैथ पढ़ा रहे हो कहाँ काम आएगा? सो दिस इज वेयर everywhere mathematics is applied. We are locating a particular place basing on coordinate geometry. लेकिन ये तो एड्रेस हो गया सर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़े हैं. तो लेट मी मेक यू मोर एक और चीज कि अगर तुमको ऐसा बोले हम 25 डिग्री 611 मिनट्स नॉर्थ एंड 26 डिग्री 304 मिनट्स साउथ, ये मेरा घर का लोकेशन है, तुम पहुंच पाओगे मेरे घर पे? No, sir. No, sir. No. But these are actually coordinates. This is the exact location of my house. तो ये कोऑर्डिनेट तुम्हारे कोई काम के नहीं है. क्यों तुम्हारे कोई काम के नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट को देखा कैसे जाता है. These are actually, if you see in your SS, your teachers teach you latitudes and longitudes. Yes, sir. Yes, sir. These are the coordinates for latitudes and longitudes. अगर पूरा का पूरा एक अर्थ है ऐसे और उस पे हम लोग ऐसे लाइंस बनाते हैं इस तरह से, फिर ऐसी लाइंस बनी होती है, इस तरह से लाइंस बनी होती है. These vertical lines, these horizontal lines are called latitudes, और ये vertically जो दिया गया है these are called longitudes. और इस latitudes and longitudes के हिसाब से मान लो ये मेरा घर है on the earth और उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, मतलब ये latitudes and longitudes से मेरे घर को लोकेट किया गया है, वो SS का पार्ट है. And that SS part is actually used in mathematics. या हम ऐसा बोले कि our mathematics part is used in SS for locating. So whatever is being taught in math, that is being used in every subject. कहीं ना कहीं उसकी यूज आती है. तो ये latitude से longitude का कंसेप्ट भी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ही इस पूरे अर्थ के ऊपर में डाला गया है. फिर ये भी बोला गया है कि there are 360 longitudes and 360 latitudes. ऐसे कुछ बोलता है ना, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक. तो ये we are not interested in that SS part, latitude, longitude. Just we wanted to tell you that horizontal lines जिसको हम लोग latitudes बोल रहे हैं, vertical lines जिसको हम longitudes बोल रहे हैं, these are used to locate a particular place on the surface of the earth. अब इसकी नॉलेज अगर तुमको नहीं है तो तुम ये लोकेशन एग्जैक्टली ट्रेस नहीं कर पाओगे. हम लोग अगर एरोप्लेन्स पे चल रहे होते हैं तो एरोप्लेन्स में वो जो पायलट है वो किस तरह से प्लेन उड़ा रहा है, ही इज एग्जैक्टली फॉलोइंग दीज कोऑर्डिनेट्स कि अब मुझे इस डिग्री से यहाँ चलना है, यहाँ से यहाँ चलना है. अदरवाइज वो बादलों के ऊपर में उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे दिल्ली कहाँ उतारना है? That is only because of latitudes and longitudes. These are coordinates that are given to him कि आपको इस कोऑर्डिनेट से होते हुए दिल्ली पहुंचना है. पर डे टू डे लाइफ में कौन इतने कोऑर्डिनेट्स और ये सब कुछ याद रखता है? ये कोई नहीं याद रखता है. लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट डे टू डे लाइफ में कॉमन पीपल के लिए इट इज नॉट यूजफुल. कॉमन पीपल के लिए हम लोग यूजफुल करते हैं तो वो है एड्रेस, जो हम लोग अपने घर का एड्रेस लिख कर देते हैं. दैट इज एग्जैक्टली वी आर लोकेटिंग आवर प्लेस बाय गिविंग सर्टन लैंडमार्क्स. कुछ लैंडमार्क्स यूज करते हैं कि भाई ब्लॉक नंबर दिस, SMP टावर 1, ज्योति पार्क, रॉपर. इसको और डिटेल भी किया जा सकता है. द मोर यू गिव डिटेल्स इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट ए पर्टिकुलर प्लेस. पर मैथ्स में भी ऐसा कुछ ही यूज करते हैं. लोकेशन के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. हमने नंबर लाइन पढ़ा है, हमको पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए सिखाते हैं, लोकेट करने के लिए सिखाते हैं. सपोज दिस इज माय नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. इस तरह से हमारा नंबर लाइन होता है. और हमको बोलते हैं कि एक पॉइंट को लोकेट कीजिए 2, तो हम फटाक से 2 के ऊपर में ऐसे कर देता है, दिस इज 2. So points plotting
इज वेरी इजी ऑन नंबर लाइन। फिर इस नंबर लाइन को अगर इसे घुमा के खड़ा किया जाए तो ऐसे बनाएंगे हम नंबर लाइन। जरूरी थोड़ा है कि हर बार हॉरिजॉन्टल ही हो। 0 1 2 3 -1 -2 -3 नंबर लाइन ये आ गया वर्टिकल पोजीशन पे, ये आ गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। और इस दोनों कंडीशन को अगर मिला दिया जाए तो वो नंबर लाइन ऐसे बनेगा और दोनों के 0 पॉइंट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, सो इट फॉर्म्स 0। इस तरफ 1 2 3 जो हमारा दिया गया था 4, इधर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग दो नंबर लाइन को अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें एट द पॉइंट 0, one is the horizontal number line, the second is a vertical number line। तो हमें ये देखकर कुछ क्लास 8 याद आता है? यस कुछ भी क्लास 8 में से क्या याद आता है? क्लास 8 में से ग्राफ। एग्जैक्टली ग्राफ याद आता है। इसको देखते ही हमको याद आ जाता है कि ये तो ग्राफ ही है। ग्राफ में ही हम ऐसे लाइंस बनाते हैं। तो ये द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर स्टडिंग, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर क्लास 8 कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स। हम ग्राफ के क्लास 8 के कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं और उसको 9 के कंसेप्ट में थोड़ा सा डालेंगे और एकदम छोटा सा पार्ट ही है ये। ना अगर तुमको ग्राफ के बारे में पता है तो फिर मुझे ज्यादा इसके बारे में तुमसे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यू नो व्हेन ए ग्राफ इज देयर व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन? इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस। वेरी गुड, दिस इज माय एक्स एक्सिस। व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन? Y axis। Y axis, very good। And what do we call this point? Origin। origin point। Origin, very good, very good, very good बेटा, origin। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दे, ये तुमको आता ही है, खाली मुझे बताना है। सारी काउंटिंग ओरिजिन से होते हैं इस तरफ, क्योंकि तुमने मुझे बोला कि सर ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस तरफ सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तुम लोग को आता है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ को, एंड दिस इज ओरिजिन एज यू टोल्ड मी। So these are basic terms that are related to our coordinate geometry। किसी का माइक्रोफोन फिर चालू हो जाता है। वत्सल, आर यू देयर? तुम्हारा है बेटा? फिर से हैंग हुआ है तो लॉग आउट कर जाओ। अगर हैंग आउट हुआ है तो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। Excuse me, sir। हाँ बेटा। Sir, I want to ask one thing। हाँ बेटा बोलो। Sir, sir, this graph, sir, in the graph paper we have to draw this in the middle। हाँ नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मिडिल में हो, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। Sir, because negative positive both। हाँ, अगर दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तो तुमको मिडिल में ड्रॉ करना होगा। इफ नेगेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड तो तुम कॉर्नर पे भी कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। Okay, sir। Done। चलो वापस बैक। What we were talking about is x-axis and y-axis। So horizontal line is called my x-axis, जैसा तुम लोगों ने अभी बोला। Y-axis means vertical line, and the point of intersection of the vertical line and horizontal line, that is what is we call it as origin। Now अब ये सादा सिंपल, क्योंकि तुमने ग्राफ किया है इसलिए ज्यादा मुझे नहीं बोलेंगे कि these two points, these two lines are used to locate points on the graph।
ये पूरे 2 लाइन्स, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, दिस इज यूज्ड टू लोकेट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. द पॉइंट्स दैट आर लोकेटेड ऑन द ग्राफ आर इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कोई भी पॉइंट हम जो ग्राफ के ऊपर में प्लॉट करेंगे, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. हमारे मैथमेटिकल टर्म में कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होगा, those values of x and y which will locate a particular point on the graph. Those values of x and y which will help to locate a particular point on the graph are called coordinates. And coordinates are always written in this way, x comma y within round brackets. हमेशा इसी तरह से लिखना, x comma y within round brackets. अगर तुम ये बनाना भूल गए, these are not coordinates, this is wrong. अगर ये बना के तुम कॉमा लगाना भूल गए, again it is wrong. Both the rules should be followed. X comma y within round brackets, they are called coordinates, where x is the value of the x from the x-axis and y is the value of y from y-axis. This value of x, इसको हम लोग कई बार ऐसे भी बोलते हैं, x coordinate. This is called y coordinate. And x coordinate is also called abscissa. Remember these names, abscissa. And y coordinate is called as ordinate. Y coordinate is called as ordinate. This is this is x coordinate, another name is abscissa. Y coordinate, another name is ordinate. Don't get confused between coordinate and ordinate. Coordinate means both x and y. Ordinate means only y, and abscissa means only x. So if you write a point, suppose this way, 1, 2. So what is the abscissa? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, what is the abscissa? तो abscissa क्या है बेटा यहाँ पर? 1. 1. And what is the ordinate? 2. 2, exactly. So this is the way of writing coordinates. And what are those coordinates termed as? X is termed as abscissa, y is termed as coordinates. चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं. Let us locate certain points on the graph. या located points में से कुछ आंसर. Excuse me, sir. हाँ बच्चा. Sir, in this abscissa means anything, or it is only a name? It is the value of x. X coordinate value है वो. हाँ बच्चा. बोलते जाओ. I'm listening. Don't worry. Sir, this exercise we have to do in a graph book. हाँ, ये चैप्टर पूरा का पूरा ग्राफ बुक में होगा. And that graph book pages are to be sticked in the fair notebook. ग्राफ खाली बनाओगे तुम ग्राफ पेपर में, बाकी पूरा का पूरा ग्राफ बुक में एक्सरसाइज को नहीं करना. हाँ, नहीं चाहिए बेटा. Sir, no sir. I'm telling that first Cartesian plane you made, we have to draw it in notebook or we have to draw in graph? नहीं. That is just for making you understand. This is class 8 part. If you want to draw, you can refer to your NCERT textbook. अगर draw नहीं करना है, you know it. इसको ग्राफ बोलते हैं, तुमको पता ही है बेटा. I am just extending it. थोड़ा extend कर रहे हैं. So introduction part, if you want to write, you can write. If you don't want to write, so chapter 3 it's not necessary. So sir, it's not necessary to write notes? No. For chapter 3 it's not necessary. ये chapter के लिए नहीं, बाकी सब chapter के तो लिखना ही है बेटा. इस chapter में because ये पूरा का पूरा class 8 का ही है, यहाँ कोई compulsion नहीं है. If you want to write, well and good. If you don't write, it is much better. Alright. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4. -1, -2, -3, -4, -5. Let us write it 1, 2, 3, and 4. Excuse me, sir. बोलो बच्चा. Sir, instead we do this in graph book, we can take the graph paper out
from the outside and stick it. Exactly. You have to take out the graph paper from outside, from the graph book, and you have to stick it in the fair notebook. Sir, if we don't take the graph paper from graph book or we purchase only the graph अरे paper, बच्चा तुम जितना that also it's okay. चलो, these are x-axis. This is x dash, y-axis, y dash, and there are certain points that are given to you: A, B, C, D, E, and F. Now let us have some questions. Can anyone tell me what is the coordinates of point E? What are the coordinates of point E? -2, -2. 2, -5. -2, -5. -2, -5 और ऐसे लिखे या ये नहीं लिखे? Yes. Yes. ऐसे लिखे ना? Okay. Yes. What is Yes, the sir. abscissa of point A? Abscissa of point A. -3. Minus? -3. -3. Abscissa means exactly -3. Then what is the ordinate of point C? -2. -2. -2. No sir, 0 sir. 3. किसने 3. 0. चलो परफेक्टली किसी ने बोला ordinate of C. What are the coordinates of point C? पहले ये बताओ. 3,0. 3,0 exactly. X-axis में 3 and Y 0. So what is the ordinate of the point C? That is 0. Very clean and clear. Ordinate means Y-axis wala part. So that is 0. Can anyone tell me the coordinates of D? Sir, of? D. The 1. 0 -4 0. -4, -4 0. देखो किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो. 0, -4. 0, -4. Very good. एकदम गलत. This is -4, 0. देखो बेटा once again 0, -4 मतलब y की वैल्यू -4 होनी चाहिए. कहीं पर भी y की वैल्यू -4 नहीं आ रही. That is why this is wrong. यहाँ पर x पे -4 है तो x की वैल्यू -4 होगी and y will be 0. देखो जिसने 0, -4 बोला बेटा आपको समझ में आ रहा है? Yes sir. अब तुम मुझे बताओ अगर पॉइंट यहाँ रखते और इसका नाम चलो पॉइंट G दे दिया तो G के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ बेटा? तो G के होंगे 0, -0, अब 0, -3. देखो द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. जब y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो y कोऑर्डिनेट्स होंगे और x 0 होगा. जब x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट होगा तो x कोऑर्डिनेट होगा और y 0 होगा. अभी क्लियर हो रहा है वो जो मिस्टेक किया था बेटा हमने यहाँ? Yes, sir. Okay, done. Chalo. Then can anyone tell me what is the abscissa of G? 0. 0. 0. Very. अभी समझ में आ रहा है पॉइंट्स को कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? What are coordinates? What are ordinates? What are abscissa? How to locate a point? How to name a point? हाँ बेटा बोलो. सर वो लास्ट G वाला नहीं आया. ये G? सर जो आपने X से पूछा ना वो. एब्सिसा बोला. अरे बच्चा ये रहा G का पॉइंट कितना आया? दिस इज 0, -3. तो एब्सिसा ऑफ G मतलब क्या? एब्सिसा मतलब क्या? उसकी X की वैल्यू और वो 0 है. Sir, X और Y. अरे Y को ऑर्डिनेट बोलते हैं. फिर से गधे Sir, सब भूल जा रहे हो मेरा बच्चा. वेट 1 मिनट. X कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा उसको बोलते हैं एब्सिसा. तुम भूल जा रहे हो अभी जस्ट रब किया. एंड Y कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट. चलो मुझे लग रहा है तुम लोगों को क्लिक करने की बहुत जरूरत है. यू क्लिक इट. मुझे लगा कि तुम्हें ये क्लास 8 का क्लियर है लेकिन फिर भी क्लिक इट.
लिख लो बच्चा इसको, तुम्हें याद रहेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल रहे हैं। अब कोई मुझे कुछ पूछ रहा था बच्चा। सर डन। सर आई एम आस्किंग। बोलो, हाँ बोलो बच्चा। Sir, sir, anytime, sir, there can be a question like, what is the x coordinate of G, or it will come axis only. बिल्कुल हो सकता है। No, it can be x coordinate of G. It can also be asked as abscissa. कुछ भी पूछा जा सकता है। Okay, sir. Done? चलो क्लिक करो इसको फटाफट। We need to go, थोड़ा सा और आगे जाना है। Sir, done. Sir, click. चलो डन। Okay. Now, a small thing. Again, we are given with two coordinates, two lines. This is x-axis and this is y-axis. This is y dash, an arrow, and this is origin. This is my positive x-axis. This is negative x-axis. This is positive y-axis. This is negative y-axis. अगर ध्यान से देखो तो क्या ये पूरा का पूरा प्लेन जो हमारा दिख रहा है बोर्ड, क्या ये दो लाइन मिलकर उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? Yes. The whole plane can be divided into four parts, taking x-axis and y-axis, and the angle between them is always 90 degree. ये भी 90 degree है, ये भी 90 degree है, ये भी 90 degree है, ये भी 90. So, if the two lines can divide the whole plane into four parts, each part, एक part ये है, दूसरा part ये है, तीसरा part ये है, चौथा part ये है, each part is called a quadrant. Each part is called a quadrant. Quadrant का मतलब 90 degree वाला जो एंगल का जो पार्ट है, that is what is called quadrant. And this will be called my first quadrant. This is called my second quadrant. This is called my third quadrant. And this is called my fourth quadrant. This is called my fourth quadrant. So, चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया पूरा का पूरा प्लेन, और each part is called a quadrant. So, all the points जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे होंगे, ऑल द पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मेरे x, y है, सारे के सारे पॉइंट्स में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। देखो हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? Yes sir, true. Yes sir. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव है तो x विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो y विल बी पॉजिटिव. दैट मीन्स आवर बोथ द वैल्यूज ऑफ x एंड y विल बी पॉजिटिव. व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, क्या होगा? Sir, x would be negative and y would be. X would be negative, y would be positive. X negative and y positive. Then third quadrant. Both negative. Both negative. X will also be negative, y will also be negative. And fourth quadrant, your x will be positive and y will be. That means अगर हमको ये concept पता है, if we know this part, so looking at a point, we can decide the quadrant of that point. अगर तुम्हें कोई ऐसा point दिया जाए -2, 3, it lies in which quadrant? तो इसके साइन को ही देख के हम बता सकते हैं. X is negative, Y is positive. X negative, Y positive. Which quadrant? Quadrant. Second. Huh? Second. Second quadrant. Very good. Point को देख कर ही पता चल जाता है. 4, 3. Which quadrant? First. First quadrant. First quadrant. Very good. 3, -5. Which quadrant? Fourth. Last. Fourth quadrant. Last बार कुछ होता ही नहीं है. Fourth quadrant नाम ही है उसका. 2, 2. Which quadrant? First. First.
-1, -2. Which quadrant? Sir, third. Sir, your video is free. Yes, sir. हाँ बेटा आ रहा है. Just a minute बेटा. चलो देखो अभी आ जाएगा. आ गया? Yes, sir. Now clear. -1, -2. Which quadrant? Third quadrant. Then 2, 0. Which quadrant? First. First. 2, 0. First quadrant. फिर से सोच के बताना. Sir, on x-axis. It is on x-axis. Sir, positive. On x-axis. On x-axis. बच्चा कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर है, on the line है, on the line है, on the line है, on the line है, तो वो किसी भी क्वाड्रेंट को बिलोंग नहीं करेगा. It will belong either to x-axis or to y-axis only. None of the quadrants. अगर ये पॉइंट यहाँ है तो इधर भी बोल सकते थे, इधर भी बोल सकते थे, दोनों में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. We will have to mention it that the point is on x-axis or on y-axis. अगर तुमको फिर से ऐसा, हाँ बेटा, -3, 0. स्पेसिफाई करना है कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? नहीं, वो स्पेसिफाई नहीं करना है. जस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. Sir, x-axis. -3, 0. एक्स एक्सिस पे परफेक्टली. 0, 4. वाई एक्सिस. वाई एक्सिस. अगर तो कोई ऐसा बोल देगा कि 0, 0. Origin. Origin. Very good. This is origin, and this point lies on both x and y axis. दोनों एक्सिस को बिलोंग करता है ये. So now, looking at the points, you can very well say कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है. देखो बच्चा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. If you have any doubt, please ask. No, sir, no doubt. क्लिक करो. No doubt. चलो क्लिक करो. नो डाउट मीन्स क्लिक करो. Sir, done. ओके बेटा, चलो डन. अगर डन हो गया है तो जितना जरूरत है उतना ही डिलीट करेंगे. अगेन लेट अस मूव ऑन विद दिस पार्ट. अब ये सारी चीजें चलो जाने दो, एक बार तो जाने दो. विल ड्रॉ इट फ्रेश वन. ये जाने देते हैं, ये जाने देते हैं, एंड let us move this also. And let us now, last part, that locate points. Now we will be locating points. And let us locate these points on the graph. मतलब इस points को ग्राफ में हमको ड्रॉ करके शो करना है. तो हमने ये 8 में भी किया है. Just we will be having a small revision type thing. इस point को हम ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, say 1, 2, 3, 4, 5, say -1, -2, -3, -4, -5, say -1, -2, -3, -4, -5, -6. एक एक करके पॉइंट को प्लॉट करेंगे. -2, 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब पॉइंट यहाँ आना चाहिए, हमको पता है. सो दिस इज माई -2 एंड दिस इज माई 3. और इन दोनों का ग्राफ में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दिस पॉइंट विल बी माई -2, 3. देखो किसी को समझ में नहीं आए कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं तो मुझे पूछना. नहीं, कोई लाइन. अगर आपको समझ में नहीं आता है देन यू कैन ड्रॉ. इफ यू आर वेरी गुड इन ग्राफ तो ये लाइंस बना के शो करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. डन. Then 4, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए था. So this is my 4 and this is 3. और ये दोनों का जो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे मीट हो रहा होगा, that would be my 4, 3. किसी को ऐसा है जो पॉइंट्स प्लॉट करना नहीं आता है तो प्लीज देख लो कैसे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं. 3, -5. So x is 3 and y is -5. इस तरफ जाना है. Yes. So this is 3, -5. Then 2, 2.
तो x का भी 2, y का भी 2, तो x से जो परपेंडिकुलर लाइन और y से जो परपेंडिकुलर लाइन मीट करेगी, दिस इज 2, 2. This is the point. This is 2, 2. This is the point. Then next, -1, -2. तो x में -1, y का -2. x में -1, y का -2. So perpendicularly ऐसे आ रहा होगा. And this point is -1, -2. Then next 2, 0. So x is 2 and y is 0. x axis में +2 यहाँ है और y 0 x axis पे होता है. So this is 2, 0. Then -3, 0. X is -3 and y 0. X is -3 and y 0. So this is the point. Then 0, 4. X is 0 and y is 4. X is 0 and y is 4. 4, sorry, ऊपर की तरफ. So this is 0, 4. Then 0, 0. So that is the point of origin. So this one, 0, 0. देखो बच्चा, किसी को पॉइंट प्लॉट करना समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकता है. No sir, understand. Understood? चलो Yes, क्लिक करो. sir. चलो क्लिक करो. Yes sir, clicked. And then open your NCERT textbook. NCERT textbook, page number 53. आगे पेज नंबर 53 पे. Yes. Yes sir. चलो. See, there is exercise 3.1. उसको नहीं करना है. Exercise 3.1 उसको नहीं करना है. Leave that exercise that we have discussed. हम लोगों ने एक पोजीशन को कैसे लोकेट किया जाता है वो मेरे घर का एड्रेस लेके हमने एग्जांपल लेके किया था. And which is that is only. So 3.1 नहीं करना है. फिर से रिपीट करते हैं. 3.1 फिर नोटबुक में नहीं करना है. Then come to page number 57. Page number 57. We are writing the homework part. Example number 1, देखो वहां पर नीचे में लिखा है. Example number 1, that is your homework. Then come to next page. Page number 59. Example number 2, that is your homework. Then exercise 3.2, page number 60. Exercise 3.2, पूरा की पूरी exercise homework में. ठीक है, टिक करते जा रहे हो ना बच्चा? Yes, sir. Yes sir. Then page number 62, example number 3. देखो example number 3. तुम साथ में रीड भी करते जा रहे हो. क्वेश्चन मुझे पता है, तो नहीं होगा तो we will see. Page number 62, example number 3. Locate the points. हमने just अभी किया. Then page number 63, example number 4. You have to locate the points on the graph. And 65. Page number 65. Exercise 3.3 पूरी. Exercise 3.3 पूरी. सर पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया. हाँ सर. Sir, we can't hear you. Am I audible? Sir, voice is low. Sir, the voice is lagging. अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? Yes, sir. Yes. Now clear. Yes. Yes, sir. Sir, your video is freezed.
Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So this sir. is your homework. Example 1, 2, 3, 4 and exercise 3.2 and exercise 3.3. Completely you can do it. If you have any doubts, you can ask me tomorrow and I will be sending you a small homework for you from this chapter from R.D. Sharma also. ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया आज हमारा. दिस वॉज जस्ट अ रिवीजन ऑफ क्लास 8 जो आपने पढ़ा था उसको जस्ट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके एक चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से तुम्हारे 9th में डाला गया है. And I think this chapter is very much clear to you all. Still, if you have any doubt, ask me in the next class. Till then, you can now leave the meeting. Thank you. Have a good day. Take care and be safe. हाँ बेटा बोलो. सर अटेंडेंस में करना होमवर्क. हाँ बेटा. सर होमवर्क ग्राफ में. हाँ बेटा हाँ ग्राफ में ही करना है. होमवर्क सारा ग्राफ में ही करना है. लोकेशन ऑफ ए पॉइंट हमने इसका ग्राफ में. अटेंडेंस तो ले लिया बेटा सबसे पहले. सर मैं श्री प्रेजेंट. 10 मिनट तक आप नहीं आए थे बेटा स्कूल क्लास चालू होने के बाद भी. You were not there for the first 10 minutes because I was waiting till 10 minutes. सर नेटवर्क इश्यू है ना इसीलिए. सबको नेटवर्क इश्यू होता है बेटा सबका. चलो ठीक है. आई टेक इट. डोंट वरी. ठीक है. ओके सर. चलो बेटा.